का दर्पण हो बापू, आजादी के आप पुरोधा, भारत की पहचान हो बापू। आज वेरी से नाइस। ठीक 2 दिन बाद यानी 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 151वीं जयंती है। इस दिन सारे देश में गांधी जी को याद किया जाएगा। उनके आदर्शों, सिद्धांतों व शिक्षाओं को याद करते हुए और वतन की आज़ादी के लिए उनके द्वारा किए गए संघर्षों और विजय प्राप्त करने की अनोखी महागाथा सुनाई जाएगी। गांधी जी ने समाज सुधारक के रूप में न केवल सामाजिक उत्थान हेतु प्रयास किया, अपितु जन जन की विभिन्न जीवन मूल्यों से परिचित कराया। आज हम सभी इस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें नमन करने हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, मुख्य अध्यापिकाओं, अतिथि महोदया एवं सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करती हूँ। अपने राष्ट्रपिता के अथक प्रयासों व कार्यों का स्मरण करते हुए आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं श्रीमती प्रतिमा बोरा जी से। प्रतिमा बोरा जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अर्थात एमए की उपाधि ग्रहण की है। आप गांधीवादी विचारधारा की अनुयायी रही हैं और कई वर्षों से साबरमती आश्रम में प्रमुख संप्रेषक के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। प्रतिमा जी, मैं श्वेता गुप्ता समस्त बाल भारती परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू। थैंक आपने यू सो हमारा मच। आमंत्रण स्वीकार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हाँ, साथ ही में आदरणीय प्रधानाचार्य जी श्रीमती आशा प्रभाकर जी का भी हृदय से स्वागत करती हूँ, जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु दिशा निर्देशन प्रदान किया। हाथ में लाठी, तन पर धोती, सत्य अहिंसा के पुजारी, जन जन के हृदय में रहेंगी बापू, सदा स्मृतियां तुम्हारी, सदा स्मृतियां तुम्हारी। तो प्यारे बहुत बच्चों, चलिए देखते हैं हमारे बाल भारती विद्यालय द्वारा निर्मित यह प्रस्तुति, जिसमें गांधी जी के जीवन आदर्शों की झलक दिखाई गई है। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। Mohandas Karamchand Gandhi, born on 2nd October 1869, emerged as the greatest political and spiritual leader of the 20th century. Known as Mahatma or a great soul, he proved to be a guiding light for leaders across the world like Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Aung San Suu Kyi, just to name a few. After returning to India from South Africa in 1915, he garnered international attention and a reputation as a powerful nationalist. सत्यमेव जयते अहिंसा परमो धर्म, उनके वो सुविचार हैं जो हमारी राष्ट्रीयता की पहचान बन गई। His non-violent ways and peaceful methods laid the foundation for an independent India. Gandhi's faith in different religions was commendable, as he was open to Christian thought with the same fervor as the Hindu ideology. His principles helped reshape humanity and lost morality as he fought to remove the social stigma of untouchability by lending the epithet Harijan, the children of God. To him, the age of democracy was the age of empowering the poorest of the poor. On his 151st birth anniversary today, it is time to spell out the greatest lessons this generation can learn from his life. His first standout lesson was that the force of power can never win against the power of love. Secondly, war always inflicts pain on everyone. Also, an eye for an eye
only ends up making the whole world blind. So, collaboration is the key to peaceful coexistence. Last but not the least, be the change we wish to see in others. One must become the catalyst of change and lead by setting an example. However, isn't it ironical that the country he fathered has become consumed by a materialistic fever? Violence against women has become endemic. We are sitting on a stockpile of deadly arsenal, and there is rampant promulgation of corruption, lies, apathy, and deceit. The glorious legacy Gandhi left us with is turning murky as we struggle with modern age existential dilemmas. But surprisingly, against all odds, in the dark recesses of one's heart, Gandhi still resides. Hope reigns supreme, as Gandhism is a way of life, a philosophy, an idea that cannot be killed as it is relevant and synergetic with today's times. Those who forget history are condemned to repeat it. Within each one of us is a Gandhi, whether it is the symbolic Gandhi of South Africa or the Gandhi armed with nothing but a handful of salt who sent a message of peace and non-violence reverberating through the world, or that Gandhi whose Charkha Khadi movement ignited the spirit of Swadeshi, or the great man whose profound doctrine of truth caught the imagination of people all over the world. He manifests within each one of us in different forms. Come, let us awaken that Gandhi within. Let us preserve his memory for all times to come, because the future depends on what we do in the present. Very nice video. I like it. Hello. अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार यहाँ उपस्थित हमारी प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी और मुख्य अध्यापिकाओं का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर बच्चों का उत्साहवर्धन किया। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपने यह प्रस्तुति। अब गांधी जी की बात हो और साबरमती आश्रम की बात ना हो, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या आप भी मेरी तरह अति उत्सुक हैं साबरमती आश्रम की आभासी यात्रा करने के लिए? बताइए, क्या चलना चाहते हैं साबरमती आश्रम देखना चाहते हैं आप? तो चलिए हम सब एक साथ मिलकर प्रतिमा बोरा जी के साथ साबरमती आश्रम की आभासी यात्रा पर चलते हैं और वहां का आनंद उठाते हैं। प्रतिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। अब हमारे विद्यार्थी आपके साथ आश्रम की आभासी यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं। जी जी, बहुत अच्छा। मुझे वीडियो और आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अब साबरमती आश्रम की मुलाकात देती हूँ आपको, और जब भी आपको अवसर मिले आप जरूर आश्रम में पधारेंगे, और सच में आप सबको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर है। तो मैं शुरुआत करती हूँ, साबरमती नदी दिखाती हूँ आपको। ये है साबरमती रिवर फ्रंट, रिवर साबरमती रिवर। ये 11 किलोमीटर में जो पूरा रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट बनाया है उसका एक व्यू है, और इसके किनारे पर ही साबरमती आश्रम गांधी जी ने स्थापना किया था। यू कैन सी द ओवरव्यू ऑफ गांधी आश्रम। सो ग्रीनरी एंड बहुत ही नेचुरल एनवायरनमेंट, पक्षियों की चहचहाट, इतना सुंदर वातावरण होता है। ये सभी लोग यहाँ आकर बहुत ही शांति का अनुभव भी करते हैं। तो मैं ये दिखा रही हूँ आपको गांधी जी का निवास स्थान। ये घर का नाम है हृदय कुंज। बाहर से आप देख सकते हैं ये गांधी जी का घर था, ठीक है। नाउ वी विल एंटर गांधी जी रेसिडेंस, ठीक है। हृदय कुंज नाम दिया काका साहेब कालेलकर ने, इस घर का नाम दिया हार्ट ऑफ द आश्रम।
ओरिजिनल स्ट्रक्चर है ये गांधी जी के घर का। 102 साल पुराना निवास स्थान है ये। और गांधी जी यहाँ पर रहे 1918 से 1930 तक। हृदय कुंज, यू कैन सी these were the Mahatma Gandhi's and Kasturba's residential quarter since 1918 to 30। 12 साल बापू इसी घर में रहे थे। हम गांधी जी का मीटिंग प्लेस देखेंगे। ये एक गांधी जी का बहुत सुंदर फोटो हमने यहाँ पर लगाया है। जो भी महानुभाव ग्रेट लीडर्स आते हैं, देश विदेश से मेहमान आते हैं, वो गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। मैं आपको गांधी जी का मीटिंग प्लेस दिखाती हूँ। यहाँ पर ही बाहर बरांडा है, वहीं पर ही गांधी जी का खाना सोना होता था। उनका कोई पर्सनल बेडरूम या कहा जाए ऐसा कोई कमरा नहीं था। आई विल ओपन गांधी जी मीटिंग प्लेस। इसमें हमने ओरिजिनल चीजें रखी हैं। इसको खोलो ना, खोलो। ये पकड़ो, मैं खोलती हूँ। 1 मिनट, खोलती हूँ। पकड़ो पकड़ो। हाँ, नहीं है शायद, देखो ये वाली है दूसरी। हाँ, ये वाली। थैंक यू। ये देखिए, ये है गांधी जी का खंड, मतलब उनका मीटिंग प्लेस। तो हम एंटर हुए होंगे यहाँ पर, और ये गांधी जी की बैठक सब ग्रेट लीडर्स लाइक दादा धर्माधिकारी, रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कैलन बेग, पोलाक, सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, सभी के साथ यहाँ बैठे गांधी जी चर्चा विचारना करते थे। हमारे देश की आजादी की लड़त के जो डिसीजंस लिए जाते थे, वो ये जगह है। यू कैन सी द ओरिजिनल स्पिनिंग व्हील ऑफ गांधी जी। ये बापू का असल चरखा है जो खुद चलाते थे स्वावलंबन के लिए। ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के लोगों को रोजगारी मिले, इसलिए वो उन्होंने चरखे का प्रचार किया था। ये गांधी जी का राइटिंग डेस्क, और आप देख सकते हैं 3 मंकी का स्टैचू। निचिदासु फ्यूजी गुरु जी एक बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे जापान से, उन्होंने गांधी जी को भेंट में दिया था। ये पेन स्टैंड है बापू का, और ये एक साइड टेबल, ये सब गांधी जी यूज करते थे। वो चीजें हमने यहाँ पर रखी हुई हैं गांधी जी के मीटिंग रूम में। और ये है उनके पीए महादेव भाई देसाई, उनका ये डेस्क हुआ करता था। तो यू कैन सी द ओपन, इतना खुलापन था घर में, खिड़कियां हैं और बाहर का व्यू इतना सुंदर दिखता है। ये साबरमती नदी का सीधा किनारा। जब गांधी जी 21 साल दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद हमेशा के लिए भारत वापस आए, तो एक और आश्रम है गांधी जी का जिसका नाम है कोचरब आश्रम। वो यहाँ से 4 माइल दूर है, और वही आश्रम यहाँ पर 1917 में शिफ्ट हो गया था। हम अंदर की साइड जाएंगे। ये वरांडा हुआ करता था, और आप देख पाएंगे कस्तूरबा जी का कमरा। कस्तूरबा जी गांधी जी की वाइफ का नाम, और 13 साल की छोटी उम्र में ही उनका शादी हो गया था। और गांधी जी के 4 बेटे थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। यू कैन सी हियर कस्तूरबा गांधी का एक बहुत सुंदर एक फोटो लगाया है। और गांधी जी के साथ, बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन बहुत ही स्वाभिमानी और डिसीजन लेने वाली, गांधी जी के सभी कार्यक्रमों में कस्तूरबा जी ने उनका साथ दिया। और अंत समय में आगा खान पैलेस पुणे, जहां पर उनको भी नजर कैद रखा गया था, वहीं उनका अवसान हो गया था। एक हमने पैनल बनाया है, बोर्ड, हाउ गांधी जी बिकेम मोहन टू महात्मा। यू कैन सी हियर उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के सब इंसिडेंट्स हमने यहाँ पर लिस्ट बनाया है। और 1948 में जब बिरला हाउस दिल्ली में थे, वहां उनका अवसान हो गया था। और ये बहनें गेस्ट जो आती थी,
सरोजिनी नायडू, प्रभावती देवी, मणि बहन, डॉक्टर सुशीला नैयर। उस समय तो बिजली भी नहीं थी, सिर्फ मैट बिछा के ही लोग सभी लोग नीचे सो जाते थे फर्श पर। बहुत सिंपल लाइफ थी। यू कैन सी सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग ऑफ गांधी जी रेसिडेंस। कितना खुलापन और सादगी भरा जीवन। और ये रसोई घर हुआ करता था जहां सामूहिक रसोई होती थी, किचन। हमने रसोई घर में कुछ ओरिजिनल चीजें गांधी जी की रखी हुई हैं। लाइक ये एक वॉकिंग स्टिक है, उनका एक ओरिजिनल चरखा है, अस्थि कुंभ जिसमें बापू की अस्थियां आई थी, जिसका विसर्जन हुआ साबरमती नदी में। और कुछ चीजें जो डेली लाइफ में गांधी जी यूज करते थे, लाइक उनका एक चश्मा है, 3 मंकी का स्टेच्यू है, खड़ाऊ है, स्टोन डिश, वुडन डिश। यरवड़ा जेल में थे तब उन्होंने ऐसा पॉट यूज किया। ये एक बाउल था चिनाई माटी का। तो ये सब चीजें डेली लाइफ में गांधी जी यूज करते थे, वो सब हमने यहाँ पर डिस्प्ले में रखा हुआ है। जर्मन चम्मच, फिर किचन नाइफ फॉर वेजिटेबल्स। तो ये जो चॉपर वगैरह यूज करते थे वो सब चीजें हमने शोकेस में रखी हैं। हमारे पास आर्काइव्स में काफी उनकी ओरिजिनल चीजें भी रखी हुई हैं। कस्तूरबा की साड़ी जो खुद उन्होंने हाथ से बनाई। ये पानी का मटका रखने का स्टैंड हुआ करता था। अभी साबरमती आश्रम में 5 हेरिटेज प्लेस हैं। नंदिनी निवास जो लास्ट कॉटेज है, अभी वहां पर काम चल रहा है। तो जेंट्स गेस्ट जो भी वहां आते थे वो लोग नंदिनी निवास में रुकते थे। अभी हम विनोबा कुटीर, मीरा कुटीर देखेंगे। सभी जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स लाइक सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, चंपारण का सत्याग्रह हुआ, वाईकॉम सत्याग्रह हुआ, जो भी कार्यक्रम गांधी जी ने भारत आने के बाद शुरू किए थे, वो ये कर्म भूमि गांधी जी की हम इसको कहते हैं, वर्क प्लेस ऑफ गांधी जी। यू कैन सी हियर द बिग ट्री। ये गांधी जी के समय का एक ट्री है। और गांधी जी के रेसिडेंस के बाजू में ही विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर है। विनोबा भावे जी नाम सुना होगा आपने। ये मीरा कुटीर और विनोबा कुटीर। विनोबा जी को प्रथम सत्याग्रही गांधी जी ने कहा। और सही मायने में गांधी जी के विचारों का प्रचार करने वाले विनोबा जी आश्रम के बच्चों को पढ़ाना, चरखा कताई काम सिखाना, वो सब करते थे। और मेडलिन स्लेड एक एडमिरल की बेटी आई थी ब्रिटेन से, जिनको गांधी जी ने नाम दिया था मीरा बहन। वो इस कॉटेज में रुकी थी 25 के बाद, और अप टू एंड उन्होंने गांधी जी के साथ काम किए। ये लास्ट कॉटेज है नंदिनी निवास, जहाँ जेंट्स गेस्ट आते थे वो लोग रुकते थे। बहुत आश्रम की जगह धीरे धीरे जैसे जैसे गांधी जी को मिलती गई वैसे एक्सपांड होता गया। और 400-500 उनके फॉलोवर्स यहाँ पर रहते थे। तो पुराने जो 5 हेरिटेज प्लेस हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और बाद में म्यूजियम। ठीक है। और अंत में आपको कुछ भी प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। ठीक है। अभी हम जा रहे हैं प्रार्थना भूमि की ओर। सुबह शाम की प्रार्थना गांधी जी सब अनुयायियों के साथ करते थे, और सर्व धर्म प्रार्थना, किसी एक धर्म में नहीं मानते थे। सत्य ही ईश्वर है, और जो आत्मिक बल उनको मिलता था वो प्रार्थना से। ये है प्रार्थना भूमि गांधी जी की, जो सुबह शाम की यहाँ पर प्रार्थना होती थी। यू कैन सी जस्ट द बैंक ऑफ द रिवर साबरमती एंड ओपन प्लेस प्रार्थना भूमि। कोई बंद जगह यानी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा उनको पसंद नहीं था, लेकिन खुले में ही प्रार्थना करना अच्छा लगता था। ये है उपासना भूमि। बाद में बाइबल, कुरान, भगवत गीता में से खुद गांधी जी प्रवचन देते थे। तो ये पवित्र जगह है जहाँ पर
अभी भी ऐसी प्रतीति होती है कि गांधी जी का आवाज गूंज रहा है। वैष्णवजन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे। और रघुपति राघव राजा राम, सभी धर्मों की प्रार्थना यहाँ होती है। और ये आप देख सकते हैं, साबरमती नदी का एक घाट है। गांधी जी थे तब ये कच्चा घाट था। दिस वॉज जस्ट द बैरन लैंड, साबरमती नदी। मोदी जी जिन महानुभावों के साथ यहाँ पर आते हैं, लाइक जिनपिंग, नेतान्याहू आए, जस्टिन ट्रूडो आए, शिंजो आबे जी आए जापान के, और ट्रम्प साहब लास्ट ईयर आए थे, तो सभी के साथ मोदी जी यहाँ पर बैठते हैं और हृदय कुंज श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। अभी हम जा रहे हैं मगन निवास की ओर। मगन भाई गांधी गांधी जी के भतीजे थे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी के साथ काम किया था और आश्रम का संचालन मगन भाई गांधी करते थे। यू कैन सी द व्यू, सो ब्यूटीफुल प्लेस, नेचुरल ग्रीनरी बहुत है यहाँ पर। ये मगन भाई गांधी का निवास स्थान, एक कॉटेज है, ठीक है। काफी आश्रमवासी भी यहाँ पर रहते थे। और 100 साल के उपलक्ष्य में हमने चरखे के अलग अलग मॉडल्स का एग्जीबिशन यहाँ लगाया है, वो आपको बताएंगे। ये मगन भाई गांधी जी इस नेव्यू एंड ही वाज बहुत ही एक्सपर्ट थे। चरखा वगैरह बनाना और आश्रम का संचालन बहुत ही सुंदर तरीके से करते थे। ये एक 1924 का चरखा है जो कमल अम्मा जी का है, जिन्होंने सबसे महीन धागा गांधी जी के साथ काम किया और सबसे महीन धागा जो है वो उन्होंने बनाया था ये वाले चरखे पर। ये है 1924 का चरखा। यू कैन सी द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ स्पिनिंग व्हील। ये देखिए, एक किसान चरखा है, ये एक पोर्टेबल चरखा है, तो वी कैन कैरी इट एनीवेयर। बॉक्स की तरह पैक करके हम कहीं पर भी लेके भी जा सकते हैं। लता बहन, एक मिनट आप वीडियो लो न, तो हम आपको चरखा चला के दिखाते हैं किस तरह से रुई में से धागा बनता है। हाँ तो हाँ, हमारी कलीग हैं लता बहन, वो बताएंगे कि किस तरह से कताई काम होता है, रुई में से धागा बनता है। ये लता बहन है, ये भी हमारी तरह गाइड ही हैं और आश्रम के विजिट करवाते हैं। यू कैन सी द पोर्टेबल वर्जन ऑफ स्पिनिंग व्हील। रुई है और धागे को लगाकर हम घुमाएंगे चरखे को तो रुई में से धागा बनता जाएगा और फिर यहाँ पर ये स्पिंडल में इकट्ठा होता है। यू कैन सी, देखिए कैसे धागा बन रहा है। पूरा मैन्युअल प्रोसेस होता है, हैंड स्पन हैंड वोवन क्लॉथ, दैट इज कॉल्ड खादी। तो खादी का जो कपड़ा है वो पूरा मैन्युअली होता है for self-reliance and to give more and more people employment. Gandhi ji started this movement. You can see this type of clothes we can make from thread. ये पोर्टेबल चरखा, कोई भी चरखा हो उसका काम रहता है रुई में से धागा बनाना। या इसको बंद करके हम कहीं पर भी लेके भी जा सकते हैं, इस तरह का ये लाइक लैपटॉप वर्जन ऑफ चरखा, राइट। ये अलग अलग सब टाइप के चरखे हैं, एक स्पिंडल का चरखा, 2 स्पिंडल का चरखा। यू कैन सी द किसान चरखा। ये एक बुक चरखा है, बहुत ही छोटा सुंदर चरखा है, तो वी कैन कैरी इट। अलग अलग स्टेट में, राज्य में कैसे कैसे चरखे चलते हैं। ये है पंजाब का चरखा है, यू कैन सी हियर बैम्बू चरखा ऑल्सो, बैम्बू से बना हुआ। कुछ हमने यहाँ पर एग्जीबिशन में पिक्चर भी लगाए हैं जी के, कार्टून लाइक पिक्चर्स हैं। एंड दिस इज राजस्थान चरखा। यू कैन सी हियर, राजस्थान में इस तरह के चरखे चलते हैं। और अभी जो लेटेस्ट मॉडर्न चरखे निकले हैं जिसको कहते हैं अंबर चरखा। अंबर चरखे में मल्टी स्पिंडल्स होते हैं। एक मिनट, अब बोली लो ना पची तो। देखिए ये है अंबर चरखा, तो एक बार घुमाने से वी कैन गेट मल्टी टाइम्स थ्रेड। तो सोलर पावर से भी वो चलता है। यू कैन सी हियर, सोलर पावर से भी ये चरखा चलता है।
तो ये ज्यादा अभी उपयोग में आते हैं क्योंकि हमको मोर एफिशिएंट एंड वी कैन गेट मल्टी टाइम्स रेट। ये कहते हैं अंबर चरखा। ठीक है, अलग अलग मॉडल हमने रखे हैं अंबर चरखे के, राइट। ये ऊपर रुई लगी रहती है और चालू होने से फिर नीचे यहाँ पर धागा इकट्ठा होता जाता है, इसको कहते हैं अंबर चरखा, राइट। दिस इज वन ऑफ द इनोवेटिव चरखा। वो साइकिल के व्हील से हमने बनाया है, बहुत ही सुंदर एक चरखा, इनोवेटिव। साइकिल के व्हील को घुमाएंगे तो ट्रैक में फिर धागा इकट्ठा होता है। तो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज भी हम दिखाते हैं गांधी जी के ऊपर बनाई हुई, स्वतंत्रता आंदोलन से लगती, लेकिन अभी कोरोना के हिसाब से हमने वो थिएटर बंद रखा है। यू कैन सी द नेचुरल व्यू ऑफ गांधी आश्रम। ठीक है, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी है। और हम अभी जाएंगे म्यूजियम में, जो 1963 में बना और चार्ल्स कोरिया आर्किटेक्ट का वो डिजाइन है। और जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे तब के प्रधानमंत्री जी ने इस म्यूजियम का उद्घाटन किया था। गांधी जी 15 साल अहमदाबाद में रहे, पूरा उसका एक गैलरी बनाया है। और जो जो आंदोलन, जो प्रवृत्तियां, जो समाज सुधार के कार्यक्रम उन्होंने किए, उसका एक पूरा फोटो गैलरी हमने म्यूजियम में बनाया है। यू कैन सी हियर सूत के धागे से, रुई में से बना हुआ सुंदर एक गांधी जी का फोटो हमने यहाँ पर लगाया है। यू कैन सी, देखिए, रुई में से, कॉटन में से बनाए हुआ कितना सुंदर गांधी जी का एक फोटो है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना गांधी जी ने किया, जिसका नाम है गुजरात विद्यापीठ। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। और गुजरात विद्यापीठ 1920 में गांधी जी पहले उसके वाइस चांसलर थे। तो ये गुजरात विद्यापीठ, अभी भी बच्चे वहां पर 2-3 हजार से भी ज्यादा बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, गांधीयन वे में। यू कैन सी अ बिग स्पिनिंग व्हील। मोदी जी ने यहाँ पर आए थे आश्रम में, तो उन्होंने ये भेंट में दिया है, एक बड़ा चरखा। अहमदाबाद की गैलरी, तो नमक का सत्याग्रह जो उन्होंने यहाँ से शुरू किया, उसका एक मॉडल है ये। गांधी जी चपटी मीठो उठाते हुए और नमक का कानून उन्होंने तोड़ा। तो 80 लोगों के साथ यहाँ से चले थे दांडी यात्रा के लिए, और 241 माइल चले। तब जाते समय उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि जब तक मेरा देश आजाद नहीं होगा, मैं इस आश्रम में वापस नहीं आऊंगा। तो ये दांडी यात्रा का एक मॉडल है। यू कैन सी हियर, साबरमती आश्रम से स्टार्ट होकर दांडी यात्रा, और किन किन गांवों में होकर गांधी जी चले। 385 किलोमीटर। दांडी इज द साउथ ऑफ गुजरात, नवसारी के पास है। यहाँ से जो आंदोलन शुरू किए, वो विदेशी कपड़ों की उन्होंने होली जलाई, सामने रखा स्वदेशी वस्त्र, खादी, स्वावलंबन। वो गांधी जी डिड नॉट वांट मास प्रोडक्शन, बट प्रोडक्शन बाय मासेस। तो ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव एम्प्लॉयमेंट। और ये चौरी चौरा कांड हुआ, उसका एक फोटो है। कोहाट का सत्याग्रह हुआ, जहां हिंदू मुस्लिम झगड़े हो गए थे, गांधी जी ने उपवास किया वहां पर, और वो झगड़े शांत हुए। वाईकोम सत्याग्रह, जहां हरिजन को प्रवेश नहीं था मंदिर में, तो गांधी जी ने खुद आंदोलन करके और हरिजन को भी समान हक दिलाया। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, एक लोकतंत्र की बहुत ही सुंदर उन्होंने व्याख्या यहाँ पर दिया है। व्हाट इज डेमोक्रेसी। चंपारण, सबसे पहला आंदोलन भारत आने के बाद वो चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण, जहाँ किसानों को गांधी जी ने न्याय दिलाकर और 3 कटिया पद्धति जो थी वो खत्म हुई। ये 2 मैगजीन्स गांधी जी ने अहमदाबाद से शुरू किया था, यंग इंडिया और नवजीवन। तो उसका ये ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, यू कैन सी हियर, यंग इंडिया और नवजीवन। एक चरखा, उस समय का स्पिनिंग वीविंग जो होता था, उसके फोटोज
यहाँ पर लगाए हुए हैं। और 11 व्रत गांधी जी के, सत्य, अहिंसा, से ब्रह्मचर्य, संग्रह, सभी को नियम पालन होता था करना। और ये है एक डॉक्यूमेंट 20 रुपए के स्टैंप पर, जो ये जगह गांधी जी के नाम पर खरीदी गई थी। ये कोचरब आश्रम, पहला आश्रम गांधी जी का, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वो रेंटेड हाउस था, 2 साल वहां रहने के बाद गांधी जी ने वही आश्रम यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ट्रेडिशनल ड्रेस में बा और बापू 1915 में जब वापस आए थे, तो ट्रेडिशनल ड्रेस में बा और बापू यू कैन सी, तब 46 इयर्स के थे गांधी जी। तब हमारे देश की आजादी की लड़त उन्होंने शुरुआत किया था अहमदाबाद से। एक हरिजन बेटी को भी अपनी बेटी बनाया, जिसका नाम था लक्ष्मी। और अंबालाल साराभाई एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने बापू को मदद किया था फाइनेंशियली। यू कैन सी हृदय कुंज, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ गांधी जी रेसिडेंस, पुराना हृदय कुंज का फोटो है। जिन जिन महानुभावों ने आश्रम में गांधी जी के साथ काम किया, मगन भाई गांधी, काका साहेब कालेलकर, जमनालाल बजाज, किशोरीलाल मशरूवाला, नरहरि परीख, मेडलिन स्लेड, जो मैंने बताया आपको, मीरा बहन जिनको नाम दिया था बापू ने, महादेव भाई देसाई गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट थे, विनोबा भावे जी, प्यारेलाल जी, और मोरेश्वर खरे जो प्रार्थना गवाते थे, मोरेश्वर खरे नाम था, जिन्होंने आश्रम भजनावली भी लिखा था। मैं आपको जिन जिन महानुभावों ने हमारे आश्रम का विजिट किया, उनके फोटोग्राफ्स हमने यहाँ पर लगाए हैं। मोदी जी के साथ अब्दुल कलाम जी हैं। ये चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग जी आश्रम में जब आए, मोदी जी उनको चरखा बता रहे हैं। और प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर थर्ड, और हामिद अंसारी। देन अमिताभ बच्चन को भी आप देख सकते हैं, हमारे आश्रम में पधारे थे। तो अमिताभ बच्चन जी चरखा चलाना सीख रहे हैं। नाउ वी विल एंटर द पिक्चर गैलरी, जहां पर 7 लाइफ साइज पेंटिंग्स हैं गांधी जी के। फादर ऑफ अवर नेशन गांधी जी मेडिटेशन में बैठे हुए, चरखा चलाते हुए गांधी जी का एक पेंटिंग है। दांडी यात्रा के लिए जब चले, उसका एक पेंटिंग बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इंटरकास्ट मैरिज भी गांधी जी ने आश्रम में करवाया था, उसका एक फोटो है। कस्तूरबा जी भी बैठी हैं उनके बाजू में, कस्तूरबा जी। और बापू सत्य और अहिंसा के संदेश देते हुए, यू कैन सी देयर द पेंटिंग ऑफ गांधी जी। नरहरि परीख, सॉरी, हरिलाल खत्री और चंदूलाल शाह जी के ये पेंटिंग्स हैं। लास्ट उपवास जो गांधी जी ने रखा, उसका एक ये पेंटिंग है। 18 तारीख को जनवरी की ये उपवास उन्होंने तोड़ा था, पूरा किया था। तो और 30 तारीख को तो गांधी जी का अवसान हो गया था। और ये है सब ग्रेट लीडर्स के साथ गांधी जी हरिजन कॉलोनी में जाते हुए। खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, नेहरू जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, प्यारेलाल जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मौलाना आजाद, सभी के साथ बापू हरिजन कॉलोनी में जाते हुए। ये एक पेंटिंग है, बहुत ही सुंदर। तो ये पिक्चर गैलरी पूरा हुआ। और लाइब्रेरी है जहां पर हमारे पास 50,000 से भी ज्यादा किताबें हैं। एंड दिस इज प्रॉफिट ऑफ जेंटलनेस। दुनिया भर के जितने ग्रेट पर्सनैलिटीज है, उन्होंने क्या कहा
गांधी जी के बारे में ये एक कोट हमने यहाँ पर, मैं आपको आइंस्टाइन का कोट पढ़ के दिखाती हूँ। आने वाली पीढ़ियां शायद विश्वास भी ना करें कि एक ऐसे मनुष्य ने कभी धरती पर जन्म लिया था। इस तरह से हेनरी डेविड थोरो, मार्टिन लूथर किंग, अब्दुल गफ्फार खान सभी के वक्तव्य हैं। एंड डेली एक्टिविटीज ऑफ गांधी जी, प्लांटेशन भी करते थे, टॉयलेट सफाई भी करते थे, रोगी की सेवा भी करते थे, और प्रवचन देना, मेडिटेशन करना, ये सब फोटोग्राफ्स हमने लगाए हैं। 7 साल के गांधी जी थे तब का ये एक फोटो है, बहुत ही फेमस। और हाउ ही चेंज हिज लाइफ, चेंज ऑफ थिंकिंग, चेंज ऑफ लाइफ। और गांधी जी बच्चों के साथ, बच्चे तो बहुत प्यारे थे उनको, ये छोटी इंदिरा गांधी है, आप देख सकते हैं। एंड गांधी जी बच्चों के साथ गम्मत करते हुए, तो इस तरह से ये पिक्चर गैलरी है जो उनकी लाइफ स्टोरी बताती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो है चित्र हमने गांधी जी के एग्जीबिशन में लगाए हैं। एंड ये म्यूजियम, ठीक है, और 5 हेरिटेज प्लेस मैंने बताए। और सामने की साइड हमारा बुक स्टोर और खादी का स्टोर भी है। अगर लोग बहुत से आते हैं, खादी की डिमांड बहुत है और लोग लेते भी हैं, पसंद करते हैं। Now we will go to the near archives and bookstore and khadi store. You can see here unusual postal addresses. तो लोग सिर्फ लिखते थे महात्मा गांधी या गांधी जी जहां हो वहां, तो उनको पत्र मिल जाता था, कहीं पर भी एड्रेस भी नहीं लिखना पड़ता था, इतने गांधी जी फेमस हो चुके थे। और महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा, और बापू उनको गुरुदेव करके रिस्पेक्ट देते थे। नाउ दिस वर्चुअल टूर इज ओवर, मैंने आपको सब दिखा दिया। एंड बीच में जो ग्राउंड है वहां गांधी जी का एक स्टैचू है, जहां पर महानुभाव आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, सूत की माला पहनाते हैं। ठीक है मैडम, अभी बच्चों को अगर कुछ भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। और ये मैंने आश्रम का विजिट आपको करवा दिया, और कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। निस्संदेह यात्रा के दौरान बहुत ही सुखद अनुभूति हुई। निश्चित ही इस यात्रा ने हमें विशेष ज्ञान प्रदान किया है, और ये यात्रा सदा सदा के लिए हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ेगी। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा ही नहीं कि हम दूर बैठे हुए हैं और इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं, ऐसा लगा कि हम आप लोगों के बीच में और गांधी जी के साथ उनकी जो स्मृतियां हैं सबको नजदीक कर दिया है। हाँ जी, तो है ना, दूर बैठे भी हम सब कुछ देख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो एवरी एंडिंग इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। जहाँ महामारी ने हमारे लिए कई रास्ते बंद कर दिए, वहीं दूसरी ओर हमें ऐसे अवसर प्रदान किए जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी, और ऐसा ही एक सुअवसर हमें आज की इस यात्रा के रूप में प्राप्त हुआ। प्रतिमा जी, अब हम और हमारे बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब हमारे कुछ जिज्ञासु छात्र आपसे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने विद्यालय की हिंदी विषय की अध्यापिका श्रीमती दीपा चतुर्वेदी मैम से कहूंगी कि वे अपना प्रश्न पूछें। धन्यवाद मैम। महोदया, मेरा आपसे सवाल ये है कि साबरमती आश्रम में सभी भवनों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि विनोबा मीरा कुटीर, हृदय कुंज, नंदिनी अतिथि गृह आदि। मैं आपसे यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इन भवनों के नाम किस आधार पर निर्धारित किए गए हैं? हाँ, हृदय कुंज तो हार्ट ऑफ द आश्रम गांधी जी का घर था, इसीलिए काका साहेब कालेलकर ने बहुत ही सुंदर एक जो प्रार्थना है ना, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, तो उसमें अंतिम पंक्ति में आता है मम हृदय कुंज निवास कुरु। तो उस अक्षर के ऊपर से हृदय कुंज जो है वो गांधी जी के घर का नाम रखा गया है। और नंदिनी निवास तो इसीलिए कहते थे कि नंदिनी एक पवित्र गाय होती है,
और जो भी हमारे मेहमान अतिथि हैं वो पवित्र हमेशा होते हैं, इसलिए उसका नाम नंदिनी रखा। और विनोबा भावे जी रहे, इसलिए उस कॉटेज का नाम है विनोबा कुटीर और मीरा कुटीर। अलग अलग समय में दोनों महानुभाव वहां पर रहे। और मगन निवास तो मगन भाई गांधी उनके भतीजे थे, उनके नाम पर ही रखा गया है। ठीक है जी, बहुत बहुत और धन्यवाद मैम। जी। अति और उत्तम कोई मैम, क्वेश्चन? अति उत्तम, बहुत विशेष जानकारी आपने हमें प्रदान की। अब हाँ हमारे कुछ नन्हे छात्र आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। हाँ तो हाँ, सर्वप्रथम जरूर। कक्षा 4 की छात्रा आरिका अग्रवाल अपना प्रश्न पूछ रही हैं। आरिका, कृपया अपना प्रश्न पूछ सकती हैं आप। धन्यवाद अध्यापिका जी, आपने मुझे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मेरा प्रश्न यह है कि गांधी जी को चरखे से इतना लगाव क्यों था? हाँ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका रहने के बाद जब भारत आए तो उन्होंने देखा कि विदेशी यहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारा सब कॉटन लेके जाते थे और फिर यहाँ पर बहुत महंगे भाव से कपड़ा बेचते थे। तो गांधी जी ने सोचा कि अगर हम अपना कपड़ा खुद बनाएंगे तो हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा और हमारे देश के लोगों को रोजगारी मिलेगी। कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, वो गांधी जी का एम था। इसीलिए उन्होंने चरखा घर घर में चलवाया और सबको रोजगारी मिली। रोजगारी का मतलब समझते हो, एम्प्लॉयमेंट, तो आजीविका मिली। तो इसीलिए उन्होंने चरखा चलाकर विदेशी कपड़ों की होली जलाई और घर घर में फिर चरखा चला। तो उनको बहुत ही प्रिय था चरखा। यहाँ आने के बाद ही उन्होंने शुरू किया था चरखे का प्रचार। दक्षिण अफ्रीका थे तब नहीं किया था। ठीक है, धन्यवाद वेरी गुड अध्यापिका जी, क्वेश्चन। आपने Thank मुझे बहुत अच्छे से प्रश्न का उत्तर समझाया। थैंक यू बेटे। एनी मोर क्वेश्चन? धन्यवाद मैम। आज भी हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की, हम गांधी जी की राह पर ही चल रहे हैं और स्वदेशी भारत की और आत्मनिर्भर की भारत की बात हम करते हैं। बिल्कुल। अब हमारी अगली छात्रा आरना गुप्ता आपसे प्रश्न करना चाहती हैं। आरना, अपना प्रश्न रखिए। धन्यवाद महोदया जी। मेरा प्रश्न यह है, साबरमती आश्रम के समान ऐसी और कौन सी जगह है जहां गांधी जी के आश्रम स्थित हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। गांधी जी ने अपनी लाइफ में 5 आश्रम की स्थापना की थी। उन्होंने एक किताब पढ़ी थी जॉन रस्किन की लिखी हुई, अनटू दिस लास्ट। वो साउथ अफ्रीका में थे तब उन्होंने वो किताब पढ़ी और उसमें इतना गहन आदर्शवादी वाक्य थे जिनसे गांधी जी का जीवन बदल गया और उन्होंने वहीं से ही आश्रम लाइफ जीना शुरू किया था। सो फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म, अगर आपको लिखना है लिख सकते हैं। 2 आश्रम गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही बनाए, फिनिक्स सेटलमेंट, फिनिक्स, और टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, गांधी जी टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड थोरो और श्रीमद राजचंद्र से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपना आश्रम का नाम भी टॉल्स्टॉय फार्म रखा था। और अहमदाबाद में 2 आश्रम हैं जिनके नाम है कोचरब आश्रम और हमारा साबरमती आश्रम। और यहाँ से जाने के बाद गांधी जी ने लास्ट आश्रम की स्थापना किया जिसका नाम है सेवाग्राम आश्रम। वो नागपुर से 40 किलोमीटर दूर होता है, वर्धा गांव, वर्धा। तो वहां उन्होंने लास्ट आश्रम बनाया जिसको कहते हैं सेवाग्राम आश्रम। ठीक है बेटे, 5 आश्रम उन्होंने अपनी लाइफ स्पेन, अपनी लाइफ टाइम में बनाए। और आश्रम लाइफ का मतलब बताऊं आपको, कम्युनिटी रिलीजियस लिविंग, दैट इज कॉल्ड आश्रम लाइफ। सामूहिक धार्मिक जीवन, सब साथ में मिलकर देश सेवा, समाज सेवा के काम करते थे और घुल मिलकर सभी सिंपल लाइफ जीते थे, आश्रम के रूल्स फॉलो करते थे, उसी को ही आश्रम लाइफ गांधी जी कहते थे। ओके बेटा, फाइन। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, छात्रों की जिज्ञासा शांत करने के लिए। निश्चित तौर पर हमारे छात्रों का ज्ञानवर्धन हो रहा है और नई नई चीजें बच्चों को सीखने को मिल रही हैं। अब अगला प्रश्न ऋषिका भगत की ओर से है। ऋषिका भगत, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। महोदया, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि साबरमती आश्रम में आज भी विभिन्न अवसरों पर अनेक गतिविधियां होती रहती है। क्या हमें भी उन अवसरों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है?
हाँ हाँ बिल्कुल, आप हमारे यहाँ पर बच्चों के प्रोग्राम्स वगैरह, एग्जीबिशन भी लगता है, फिर पेंटिंग कंपटीशन भी होता है, तो आप भी जरूर उसमें भाग ले सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए खाली हमारे डायरेक्टर सर को इन्फॉर्म करना होता है और वो परमिशन देते हैं तो प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है। तो ऑनलाइन सुविधा मिल धन्यवाद सकती है मैम महोदया। बच्चों को इस हाँ विषय हाँ में, इस बिल्कुल। कार्यक्रम के लिए? हाँ, हम ऑनलाइन क्विज भी सेंड करेंगे, ऐसा हो तो बच्चे लोग क्विज में भाग लेकर और जानकारी ले सकते हैं। अति उत्तम प्रतिमा जी, आपने ये जी, जानकारी हमें प्रदान की, जिससे कि छात्रों को भी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। अब एक अन्य प्रश्न जो है वो अंशुम गुप्ता आपसे करना चाहते हैं। हाँ हाँ बोलिए। अंशुम, आप अपना प्रश्न पूछिए। धन्यवाद अध्यापिका जी। हाँ जी। महोदया जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या गांधी जी का अपना कोई घर नहीं था, अर्थात आश्रम को अपना निवास स्थान बनाने के पीछे क्या कारण था? बहुत ही सुंदर आपने प्रश्न किया है। गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था, तो पोरबंदर उनके पिता मतलब पिताजी का जो निवास स्थान था, उनका जन्म स्थल, उसको कहते हैं कीर्ति मंदिर। ठीक है। और बाद में राजकोट उनके पिताजी का ट्रांसफर हुआ, वहां पर भी उनके पिताजी का एक घर है जिसका नाम है कबा गांधी का डेला। और दक्षिण अफ्रीका रहे, वहां उन्होंने 2 आश्रम बनाए, फिनिक्स सेटलमेंट और टॉल्स्टॉय फार्म, तो सब लोग साथ में मिलकर रहते थे। गांधी जी का देश सेवा और समाज सेवा का ही उनका जीवन में ध्येय था, इसीलिए उन्होंने स्थिर होकर कहीं पर भी नहीं रहे और पूरे भारत में गरीबों के लिए और हरिजन कॉलोनी में समाज सेवा के लिए इधर उधर उनका बहुत जगह जाना आना रहता था, तो परमानेंट ऐसा कोई घर नहीं था। ठीक है। धन्यवाद महोदया जी। हाँ, वफा में भी आ, सेवाग्राम आश्रम है गांधी जी का। ठीक निश्चित है तौर पर अंशुम, आपकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। जी। अब हमारे विद्यालय की हिंदी विषय की अध्यापिका रेणु मैम आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हाँ हैं। जरूर जरूर। हाँ यह वास्तव में एक यादगार आभासी यात्रा रही। इसकी स्मृतियां हमारी मानस पटल पर हमेशा के लिए अंकित हो गई हैं। जी, थैंक यू महोदया, थैंक यू मैम। इसी संदर्भ में मेरे मन में भी एक प्रश्न है जिसे मैं हाँ आपसे पूछना चाहती हूँ हाँ कि बोलिए। साबरमती आश्रम में निहित पुस्तकालय में गांधी जी द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकें हैं। उन जी पुस्तकों का लाभ हमारे छात्र किस प्रकार उठा सकते हैं? क्या कोई ई पुस्तकालय की भी सुविधा उपलब्ध है? हाँ, देखिए, हमारे एक गांधी हेरिटेज पोर्टल .org, तो वो एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हमने सब कलेक्टिव वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, उनकी ई बुक्स, लाइक उन्होंने जो लिखी हुई है, सत्य के प्रयोग, मंगल प्रभात, हिंद स्वराज और की टू हेल्थ एंड अनासक्ति योग, देन वन मोर बुक दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह, तो वो जो किताबें हैं वो हमने डिजिटली पूरा पोर्टल पे रखा हुआ है जिसका नाम है गांधी हेरिटेज पोर्टल .org। ठीक है, धन्यवाद रिपीट करूं महोदया। क्या? रिपीट करूं? गांधी हेरिटेज पोर्टल .org। ओके, so you can जी, get each and every information in that portal। उसका काम भी हमारे आश्रम में ही चल रहा है, उसकी ऑफिस हमारे म्यूजियम में ही है और more than 25,000 pages are uploaded in that portal। okay, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। थैंक यू मैम। धन्यवाद मैम। इस जानकारी के साथ हमारे बच्चे बहुत लाभ उठा पाएंगे पुस्तकालयों का, बिल्कुल। गांधी जी से संबंधित पुस्तकें पढ़ पाएंगे। हाँ, डिजिटली पढ़ सकते हैं। अब एक अंत में मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछने की अनुमति चाहती हूँ जो मेरे हाँ, मन में बोलिए। उठ रहा है जरूर कि जरूर। आज की युवा पीढ़ी आधुनिकीकरण के कारण गांधीवादी मूल्यों और शिक्षाओं को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही है, तो क्या आश्रम के संयमित वातावरण में रहकर ही ऐसे युवाओं को मार्गदर्शन व ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलना संभव है? हाँ, अभी ये डिजिटल युग है और लोग भी जरा मॉडर्नाइज और वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं बच्चे, तो हम डिजिटली भी इतने अच्छे अच्छे जो वीडियोस हैं गांधी जी के, वो बनाकर हम अपलोड भी करते हैं यूट्यूब में, वो भी आप देख सकते हैं। प्रैक्टिकली चरखे का ज्ञान देते हैं या गांधी जी के एक एक इंसिडेंट्स जो महत्व के आदर्श और शिक्षा देते हैं, उसको भी हम अपलोड करते हैं। एक गांधी विचार यात्रा करके है,
तो उस पर भी काफी प्रचार कर रहे हैं गांधी जी के विचारों का। तो बच्चे अगर वो पढ़ेंगे तो जरूर से उनको इंस्पिरेशन मिलेगा। हाँ, तो मैम पढ़ने के साथ साथ अगर मतलब कोई ऐसी सुविधा है कि आश्रम में कुछ समय के लिए समय बिताकर और वहाँ का जो वास्तविक अनुभव है वो हमारे युवा ग्रहण कर सकें या छात्र ग्रहण कर सकें। हाँ, एक्चुअली यहाँ रहने की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आश्रम में आकर आप प्रवृत्तियां जरूर कर सकते हैं। जैसे कोई एग्जीबिशन लगाया है गांधी जी का, या फिर कंपटीशन रख सकते हैं, पेंटिंग ड्राइंग कंपटीशन, या फिर एक पोस्ट वालों ने, इंडियन पोस्ट, उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव किया था, एक पत्र बापू के नाम। तो बच्चों ने इतना सुंदर सुंदर लिखा था, तो उससे भी उनकी भावनाएं, उनके गांधी जी के विचारों का अच्छा सा प्रचार हो रहा था। तो इस तरह से कुछ भी आप इनोवेटिव कुछ करना चाहते हैं तो हमारे डायरेक्टर सर से बात करके आप वो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी, एक विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए। थैंक यू सो मच। पिता बनकर जिसने राह दिखाई, चलना उस पर हमारा काम। जन्मदिन के इस पावन पर्व पर बापू तुम्हें शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। बहुत अतः सुंदर। बापू को हम कभी भुला नहीं सकते, वे सदा हमारे प्रेरक बनकर हमारे साथ रहेंगे। इस कार्यक्रम को समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अब हमें विराम देना होगा। अब मैं श्रीमती दीपा चतुर्वेदी जी को आभार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। दीपा मैम, कृपया धन्यवाद श्वेता आप मैम। आशा बोल सकते हैं। आज इस आभासी यात्रा कार्यक्रम के उपलक्ष्य हेतु बाल भारती परिवार की ओर से मुझे धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। मैं दीपा चतुर्वेदी संपूर्ण बाल भारती परिवार की ओर से श्रीमती प्रतिमा वोरा जी का सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हमें कृतार्थ कर दिया तथा हमारे विद्यार्थियों के लिए साबरमती आश्रम की आभासी यात्रा को संभव बनाया व ज्ञानोपार्जन में सहायता प्रदान की। आश्रम व बापू से जुड़ी प्रत्येक बात को इतने रोचक व सहज ढंग से बच्चों तक पहुंचाया। मैं आशा करती हूँ कि आप भविष्य में भी हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसके साथ ही मैं हमारी प्रधान, तो आप हमको जरूर संपर्क कीजिए और हम हमेशा तैयार हैं सबको हेल्प करने, बताने और गांधी जी के विचारों का प्रचार करने के लिए ही हम यहाँ पर गाइड और कम्युनिकेटर है। हमको भी बहुत आनंद आता है जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। और यहाँ पर फिजिकली भी बच्चे बहुत आते हैं लोकल स्कूल के, लेकिन ये कोरोना का हिसाब से ही बंद है, नहीं तो यहाँ पर विजिट भी बहुत होती है। तो सबको हम सिखाते हैं गांधी जी के बारे में, आश्रम भी बताते हैं। मुझे भी बहुत आनंद आया, बच्चों ने खूब अच्छे प्रश्न भी किए और शांति से सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद महोदया। इसके साथ ही मैं हमारी प्रधानाचार्य जी श्रीमती आशा प्रभाकर जी, उप प्रधानाचार्य जी श्रीमती अनुपमा मोतवानी जी व प्राथमिक प्रमुख श्रीमती विनया पुजारी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उनके मार्गदर्शन द्वारा ही ये कार्य संपन्न हो पाया तथा हम सभी ने ज्ञानार्जन की दिशा में इसका लाभ प्राप्त किया। इसी के साथ मैं अपने साथी अध्यापिकाओं, विद्यार्थियों व अभिभावकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। तथा अब मैं गांधी जी के विषय में इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि दुर्बल तन का निर्मल मन का, दुर्बल तन का निर्मल मन का एक फरिश्ता आया था जिसने ताकतवर दुश्मन को बिन हथियार हराया था। सत्य और शांति के बल पर जो लड़ता था, सत्य अहिंसा और शांति के बल पर जो लड़ता था, उसे महात्मा संत जमाना गांधी गांधी कहता था। धन्यवाद। वेरी नाइस, बहुत सुंदर आपने कविता कहा, बहुत ही अच्छा लगा। आप बच्चे भी बहुत ही एक्साइटेड थे आश्रम देखने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने भी बहुत आनंद मुझे लगा आया आप लोगों को वर्चुअल टूर देते हुए, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।